मेरे दादा ने जो मुझे स्टोरी बताई थी, माय दादा हैड अ लॉट ऑफ हवेलीज, ही हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ वो साइड पे, ही लॉस्ट एवरीथिंग रातों रात. Of course. एंड इतने दंगे हो गए थे कि मेरे दादा के हाथ पे ओम बना हुआ था. माय दादा हैड टू cut it with a scissor and remove it and completely scar it so that nobody sees it and burns him. दादा ने बहुत मतलब झेला है, बहुत डरे हुए रहते थे, वो अपनी आइडेंटिटी बताने से डरते थे. बट आई थिंक आई एम एंड दे आर ऑल प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी माइग्रेटेड टू दिस place, this side, because we are very happy over here and we are very proud Hindus. Of course. The first thing that he came, उन्होंने कैंप एस्टैब्लिश किया, तो फर्स्ट थिंग उन्होंने वो ठीक करा के अपना ओम वापस बनवाया. एंड दादा देन स्टार्टेड वर्किंग एज अ मैनेजर इन सिनेमा. तभी उस टाइम पे सिनेमाज होते थे. बिल्कुल. तो कल्याण में एक थिएटर होता था, वहाँ पे वो करते थे, और एक पैरामाउंट करके सिनेमा होता था उल्लासनगर में, वो मैनेजर थे. तो आई थिंक उनके जो ओनर थे, वो ओनर पारसी एक अंकल थे. उनकी बेटी थी जो अमेरिका में पढ़ती थी, एंड उनकी बेटी को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था. बट माय दादा हैड लव फॉर मूवीज. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग अबाउट इट. तो आसंदाज नाम था मेरे दादा का. तो उन्होंने वो पारसी अंकल ने सारा बिजनेस मेरे दादा को संभालने को दे दिया. एंड दादा ने वहाँ से फिर एक्सपांड करना. बट वी हैड अ सेपरेट बिजनेस. मेरे दादा फिल्म्स में थे ही नहीं. So he, मतलब वो इम्प्रोवाइज करके, मतलब उन्होंने अपना जो भी बनाया इधर, मतलब I still call him like self-made कि it is, yeah. He worked for decades under that Parsi uncle. Yeah. And it was crazy Right. how he did it. And then my father took care of the business. Then I decided to take care of the business, but no, I went into the business through other side. No, but you know, क्योंकि मैं भी वही कह रहा हूँ ना, I'm also like a second generation child of, you know, partitioned families. क्योंकि मैं भी इतनी कहानियां सुनता था उस समय कि मतलब क्या क्या देखा है सबने. बहुत पंजाब you know was filled with blood, you know. तो हर जगह दंगे हो रहे थे, उस साइड पे भी इस साइड पे भी. हर it was a and just the privilege कि जो families निकल पाए, settle हो गए, you know. And but to survive from scratch, I want to also know about Ulhasnagar, you know. What was it? देख मैं भी आया हूँ, by the way. I've been to Ulhasnagar. You know, two of my मैं पढ़ाता था कॉलेज के अंदर, जय हिंद कॉलेज में पढ़ाता था. तो मेरे दो स्टूडेंट. आप जय हिंद में पढ़ाते थे? जय हिंद में पढ़ा, 7 साल जर्नलिज्म पढ़ा मैंने. क्या बात कर रहे हो, आप आते थे? So they had invited me once. एक उन्होंने ओपन माइक किया था उल्लासनगर में, तो I had gone for that open mic. Two students of mine, Bharti and Hasri. They wanted to really again stay in Ulhasnagar and do something. They took me around the place a little bit, and I was again in awe just to see that, you know, जो resilience of a community, you know, to come out of that very difficult time. और thrived well now. हाँ, क्या खड़ा किया आप लोगों ने. The other thing that I also find it fascinating कि आपके पापा ने he had you when he was 21. Yeah. You know, he was so young. Yeah. So did you actually see the, you know, were you already comfortable जब आप पैदा हुए थे, या फिर आपने देखा आसपास your society, your community still trying to make it in Ulhasnagar? So you know, I believe my dad has worked very hard and he's given me a very good life बचपन से. So मैंने तो इतनी difficulties नहीं देखी थी, उन्होंने बहुत देखी है, दादा ने बहुत देखी है. I'm very proud of the fact that they gave me this life. Ulhasnagar, I'll tell you what, Ulhasnagar was always this very absent, judged, missed place on the map. Whenever you used to say Ulhasnagar to people, the first thing that comes to them is that we sell cheap goods. Correct. Nakli goods, which is not the case. Ulhasnagar has one of the biggest shopping markets for the middle class, and I'm very proud of it. So all the people that travel from Badlapur, Ambarnath, even Thane, Dombivli, Nick for that matter, Nick, मेरा दोस्त भी Nick, वो chairs उल्लासनगर से खरीदता था क्योंकि we have one of the biggest furniture markets. Okay. So it is the best place for shopping. Food is outstanding. The food is godly because we Sindhis हम बहुत notorious होते हैं खाने के मामले में. हम लोग बहुत fussy होते हैं. थोड़ा भी हमको चटपट कम समझ आता है, so we annihilate people. We like very criticizing. So everybody there is very conscious regarding the taste. So you'll find this beautiful community there. The biggest problem is that we were always judged. We were made to, you know, think that we are small, small-minded, and the growth there was not that much because वो crab mentality कभी-कभी होती थी. But I also believe it was because
people never gave confidence to them. When I was in that city, when I used to say that, I want to do this, I want to become a director or a YouTuber or whatever that thing was, people used to laugh. And I never used to blame them because this is what they were made to believe. Now when I'm here on this side and now when Ulhasnagar people, I meet these amazing kids, Gen Zs and Gen Alphas, who Sindhis. And these kids are so smart and they're so fun. They want to do something, they want to get into content, they want to get into acting. तो वो देख के बड़ी खुशी होती है. So अभी slowly times change हुआ है. तुमने example set किया यार. In this, yeah. Set an example. And the first thing I promised myself, the day I'll become famous, I will never hide where I'm from. Because people used to hide their identities because of, Ulhasnagar said, because of these stereotypical jokes. Correct. And these USA stupid, unfunny jokes. तो मेरा हमेशा से वही था कि नहीं, I'll proudly say where I'm from. तो तुमने ये USA वाले did you face it on a personal level also? 100%. मतलब जब हम बाहर के कॉलेजेस में भी जाते थे, there was this inferiority complex आ गया था कि we are from Ulhasnagar. And ये सिर्फ उल्हासनगर की बात नहीं है. People shame other people based on which city they are from. यार ये थाने से है, ये कल्याण से है, डोंबिवली से. But I think the sharpest and the smartest minds come from these places. And प्राजक्ता थाने से यार तुम प्राजक्ता थाने से है, अपना निक डोंबिवली से है, डोंबिवली से absolutely. थगेश भी आई थिंक इधर बाहर से, सेंट्रल लाइन के जो लोग हैं ना, रॉनी करके एक बंदा है कल्याण में, ही मेक्स गेमिंग स्टफ. So there are a lot of people who, मतलब किधर से भी इंसान आ सकते हैं. And I think this inferiority complex that we were made to feel made us, all of us, work double hard than other people. कि we want to do this. I'm just not just talking about me. बिल्कुल. अब भुवन का भी नाम ले लो. बिल्कुल. कैरी फरीदाबाद से है. बिल्कुल. फरीदाबाद I think is the funniest city in this country. I've met Arpit, Bala. इनसे बात करता हूँ ना, they're funny people. But वही, it's Faridabad is just like Ulhasnagar. छोटी सी जगह है. But you find better, hardworking people in smaller tier 2 cities. So I just want to say everyone, even if you are from a small city, don't give a fuck about what people are saying. Just work hard and the day will come you can make your entire city proud. But never forget your identity. That's very important. बिल्कुल. तो हाउ डिड, मुझे बताओ कि जो तुम्हारा ह्यूमर डेवलप होना शुरू हुआ, वाज इट बिकॉज कि तुम उल्हासनगर से निकल रहे थे, तुम पे जोक्स मारे जा रहे थे, वाज इट अ वेट थिंग क्योंकि तुमने उसके बारे में बहुत बात की है, या कुछ और था? ह्यूमर एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम घर ओनली. ओके. सो मेरे पापा एंड मेरा भाई है बंटी, मेरे चाचू का बेटा है, फनीएस्ट पीपल लाइक इन द फैमिली. दे यूज्ड टू, वो क्या करते थे ना, कुछ भी पिक्चर लगाएंगे. ये मैं एक बताऊं, एक चीज, जो सबसे फनी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मेरी फैमिली में ना मेरे से ज्यादा फनी लोग हैं जिनकी वजह से मैं फनी हूं. या बंटी वाज तो फनीएस्ट. तो हम लोग पिक्चरें लगते थे ना, तो उसमें वो लोग कुछ भी पिक्चरों पे ना कमेंट्री करते थे जो उनको पिक्चरें नहीं समझ आ रही है. एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट फनी एज हेल. जैसे रामसे की पिक्चरें होती थी, घर पे रामसे की पिक्चरें चलाते थे, तो मेरा भाई बोलता था आएगा अभी कोई चूतिया, कोई काका आएगा लालटेन लेके और बोलेगा ये हवेली में मत जाओ. एंड नेक्स्ट सीन वही होता था. एंड वी यूज्ड टू लाफ सो मच. तो मेरा भाई ना मेरे को बहुत अजीब अजीब किस्से और कहानियां बताता था. आई पिक दैट ह्यूमर फ्रॉम हिम. सो मेरे घर से ही ह्यूमर आया. वेट को लेके स्कूल में ऑब्वियसली चिढ़ाते थे, बट एक पॉइंट ऐसा आया व्हेन इवन इफ आई वाज बुलीड, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल. ओके, इफ Nikhil, if you are making fun of my weight and it's good na, it's fun na, and you can also take the jokes back na, I love you. मेरा ऐसा होता था, ठीक है, कि tease me because I'm fat. क्या बड़ी बात. But कुछ लोग होते थे ना, they used to make you feel bad about your weight. मैं ऐसे लोगों का नहीं सुन के लेता था. अभी जैसे मेरा ग्रुप है, मैं मोटा तो मेरे को चिढ़ाते थे, बहुत चिढ़ाते थे, तो मैं भी उनको चिढ़ाता था, तो वो जोक्स लेते थे. तो वहां से भी ह्यूमर डेवलप हुआ कि मजा उनके साथ आता है जो रोस्ट कर रहे हैं, जो रोस्ट ले पाते हैं ना, वहां आपकी दोस्ती बनती है. बहुत ऐसे लोग हैं जो मजाक बना सकते हैं लेकिन वो ले नहीं सकते. ऐसे बहुत लोग होते हैं. तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है. तो मैं बाय गॉड्स ग्रेस आई फाउंड ऑल माय पीपल दैट अभी तक दे ट्रीट, मैं बॉडी बना लूं, कुछ भी बना लूं, उनके लिए मैं वो मोटा हशू ही रहूंगा. अभी मैं हो गया पतला, तो वो पुरानी बातें निकाल के मुझे चढ़ाते हैं. मेरे दोस्त लोग, अभी परसों ही मैं उनके साथ था, परसों ही था. अभी तो इसको बॉडी बन गई है, चेस्ट वेस्ट बन गई है,
12th में तो लड़कियां इसके पेट के नीचे दब के मर रही थी, ऐसी बातें करते हैं साले। मैं भी क्या बताऊं आपको। Okay. But What the fuck do you mean लड़कियां पेट के नीचे दब के मर रही? What the fuck does that even mean? Fair enough. मैंने बहुत चीज सुनी हुई है। हाँ, तो बस्ती मजाक चलते ही रहता है। तो दोस्त, I think you need to have people around you who treat you very normally. बिल्कुल। आप बड़े बनो नहीं बनो, वो बड़े बने नहीं बने, जब आप 5 साथ में हो ना, आप भूल जाओ, एक डार्क ह्यूमर चलता ही है दोस्तों। But I think I love this about male friendship in particular. I'm sure that even women have these things among themselves. पर मुझे लगता है कि male friendship के अंदर ना you have that comfort level कि जहाँ पर आप एक दूसरे के सामने अपने सबसे वाहियात डार्क ह्यूमर थॉट्स निकाल पाते हो। Truest friendships are जहाँ पर आप बिल्कुल बात बताओ, मर्दों की दोस्ती is the most uncomplicated thing in this world. I agree. I'll tell you simple. I agree. मर्दों की दोस्ती ऐसे होती है, क्लास में बैठे थे हम, मैं पेंसिल या पेन भूल गया था, उसने मुझे पहली बार ए लौड़े पेंसिल दे ऐसा बोला, तो मैंने भी उसका लौड़े तमीज से बात कर। That's the first conversation you have with that man, and boom, cut to 15 years later, he's sitting with his kid, and you're still लौड़े तू चूतिया ही है। और वो भी सेम चीज बोल रहा है। मेरी जो 8th स्टैंडर्ड में अभी तक one of my closest friends is the guy I met in 8th स्टैंडर्ड in Bahrain, जो मेरे पीछे बैठा था। मुझे अभी भी याद है उसने मेरे को फर्स्ट लाइन क्या बोली है। मैं आगे बैठा हूँ, मेरी पीठ में 8th स्टैंडर्ड में पीछे बैठा है, वो ऐसे करता है। मैंने कहा हाँ, तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। दिस इज द फर्स्ट वर्ड्स ही सेड टू मी एंड आई एम लाइक व्हाट, यू नो, इज बताओ बताओ। उस टाइम से अभी हम लोग दोस्त हैं। वो कनाडा में रहता है, उसका नाम तापस है, आई एम इन इंडिया राइट नाउ। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन, सिंस दैट वन एब्सोल्युटली रिडिकुलस थिंग ही सेड, यू नो। I'll tell you, half of them, I think all of them are married now except me in the group. So I've named that group boys group only. Okay. कि यहाँ पे कोई अपनी बीवियों को नहीं लाएगा। All are like my sisters and I love them. I'm always there. When a time comes, मैं hमेशा उनकी wives का साथ देता हूँ. But when it comes to like us, so we have a boys group. Yeah. And there are always random plans on that group. We have made a pact. हम group पे plan बनाएंगे तो कोई plan होगा नहीं. Random Friday night, I will call and I'll tell them अभी हम चल रहे हैं, एंड आई डोंट केयर तुम कितने बिजी हो, तुम्हारे घर पे क्या प्रॉब्लम है, बच्चों का, पत्नी का, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें चलना है। एंड आई डू दिस आई थिंक once a month, not more than that. वो भी कभी कभी once two months में हो जाए, एंड दे ऑलवेज कम। वो हमेशा आता है। परसों मैंने आपको बताया ना, हम लोग रात को लोनावला निकल गए, एंड इट्स सो, and that is the time with your friends, all your male friends, you become a kid again. And you can talk about absolutely bullshit. बिल्कुल. And your time flies. You can eat. It is that only कि अभी भी कभी कोई फोटो खिंचा, मैं जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो कोई फोटो खिंचाने आता है तो मुझे चिढ़ाते, बहुत चिढ़ाते। तू बड़ा आदमी हो गया है, अभी हम गरीबों के साथ थोड़ी खाना खाएगा। मेरा मन करता है जूता उतार के फेंक के मारूं। वो जानबूझ के फैंस के सामने बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, अभी बात नहीं करता है हमसे, अभी बहुत घमंड दिखाता है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.